शुद्ध नाम भजन by His Holiness Gaur Govind Swami Maharaj. So we'll study part of this book. So initially in the introduction, Maharaj speaks about the holy name. So Maharaj is saying that how one should chant Hare Krishna loudly. Previously, as such, the chanting of the holy names of the Lord can be done in a manasik way, vachik way, or loudly. So previously we see those who were sadhus or Bhajanandis, they would chant the holy names of the Lord in the mind. But we see Chaitanya Mahaprabhu, when he came, knowing the condition of people in Kali Yuga, he especially emphasized chanting loudly because our mind is not very pure. When we chant loudly, at that time we feel sleep. Just imagine if you are chanting in the mind, how much we feel. When we are loudly chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, that time also sleep comes. And just imagine if Prabhupada had kept that you can chant in mind also. And most of the devotees would take that as an opportunity to sleep for 2 hours. So Mahaprabhu knew that our condition is very fallen, and that's why he gave this, that you have to chant loudly. So this is what Maharaj is quoting. Hare Krishna Tiuche Spuritarasano Nam Dhanana Tirtha Granthi Shri Subhadkati Sutarojval Karaham Vishalaksho Dirgargana Yugana Bhelanchita Pujaham Sachaitanya Kimme Punar Api Dirsho Yashyati Padam. Mahaprabhu chanted the Hare Krishna Mahamantra in a loud voice. So he himself also chanted in a loud voice. The holy name is dancing on his tongue as he counts the number of recitations with his present hand. So this word talks about both aspects. One is Mahaprabhu chanting loudly, second is Mahaprabhu counting, and he would count on fingers. His eyes are large and his long arm, bending as he performs his pastimes, reach down to his knees. He again become visible before the path of my eyes. We see that how Mahaprabhu is chanting loudly and is counting. Once His Holiness Jayapataka Swami Maharaj, he expressed to Srila Prabhupada that Prabhupada, when I chant, my mind goes here and there. And Prabhupada instructed him that you should chant loudly. And then His Holiness Jayapataka Maharaj would chant loudly. And it would disturb other devotees in the temple. Other devotees, they complained to Prabhupada, and then Prabhupada told them, you can chant loudly outside in the garden. So then Maharaj would go outside and he would chant loudly. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Loud chanting के दो फायदे हैं. एक तो है कि आपको उधर एनर्जी डालना पड़ता है, तभी लाउड चैंटिंग निकलेगा, वरना लाउड चैंटिंग नहीं होगा. तो जब एनर्जी डालना है तो कहीं ना कहीं थोड़ा टेंशन में देना पड़ेगा. करेक्ट ना? आप माइंडलेसली लाउड चैंटिंग नहीं कर सकते. हरे कृष्णा कृष्णा कितना भी प्रयास करो, माइंड को थोड़ा टेंशन देना ही पड़ेगा. लेकिन जब बहुत साइलेंट चैंटिंग होता है तो फिर चला जाता है माइंड. बस थोड़ा और वॉल्यूम कम करो, थोड़ा बस थोड़ा. Now it's perfect. Correct? रिपीट करते हरे ऐसा करके हमारा परफॉर्मेंस चलता है 2 घंटे का. एक्चुअली ये कलियोनिक ब्लेसिंग है लाउड चैंटिंग का. लेकिन ऑब्वियसली व्हेन वी चैंट विद डिवोटीज वी कांट चैंट टू लाउड, बट वी शुड चैंट सफिशिएंटली लाउड, एंड दैट इज इम्पोर्टेंट. We see that for we to do good chanting, there is no other way than to be a louder chanter. At least swift chanting Prabhupada जी बोले वो तो कर सकते हैं. Prabhupada जी का आपने देखा होगा, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे. जितना भी लाउड करेंगे उसके लिए बहुत एनर्जी लगता है, और उसके लिए आपको टेंशन देना ही पड़ेगा, चाहना चाह के भी देना पड़ेगा.
तो एक तरीके से हमारे लिए अगर थोड़ा सा लाउड चैंटिंग करें तो उसी से टेंशन अपने आप आने लग जाएगा। वरना आप देखेंगे हमारा इन अटेंशन कब होता है, जब चैंटिंग बहुत धीमे हो जाता है। क्या करना है, करना है, ऐसे चालू होता है। लेकिन जैसे गोपा जी वाला भी आप चैंटिंग करोगे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम राम, तो आप देखेंगे इसमें टेंशन देना ही पड़ेगा। जैसे कई बार हम लोगों को थोड़ा आ, मन भटक जाता है, जैसे सो जाते हैं, नींद आ जाता है, और कोई वक्त हमको उठाता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लाउड चैंटिंग है, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 राम। तुरंत माइंड वापस आ जाता है, तुरंत माइंड जो है चैंटिंग सुन लेता है। तो शायद हम लोग वही उड़ीने सुनते हैं जब हम नींद से बीच में उठते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। फिर कोई उठाएगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लाउड चैंटिंग बहुत एक रामबाण है, भगवान के राम को हमारे हृदय में प्रवेश करना। तो इसको बहुत इम्पोर्टेंस देना चाहिए। तो फिर अगर हमको होली में सुनना है तो उसके लिए अ, जोर से उच्चारण करना, दैट इज वन मेंशन्ड एंड महाप्रभु चैंट लाउडली। कीर्तन में भी आप देखेंगे हमको नींद नहीं आती क्योंकि लाउड चैंटिंग होता है। लेकिन कीर्तन में अगर बहुत सारे डिवोटीज हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं, तो माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कि बहुत सारे हैं नहीं। नहीं तो कोई दो तीन भक्त हैं और फिर उनमें आप कीर्तन कर रहे हो तो उसमें माइंड अटेंटिव रहेगा। तो जैसे एक भक्त गा रहा है तो एक भक्त भी नहीं गा रहा है तो आवाज तुरंत कम हो जाता है, तुरंत एक्नॉलेजमेंट आ जाता है कि कोई तो गड़बड़ है। तुरंत गाएगा संसारे तो ये बहुत अच्छा है। इसलिए आप देखेंगे जो 24 घंटा कीर्तन करते हैं वो दो तीन लोग ही बैठते हैं। तो गाते रहते हैं, इनका एक्चुअली बहुत इफेक्टिव कीर्तन होता है। Loud chanting is very helpful and is very good. Those who are great souls, we can't imitate them. They can chant softly, very softly also. And they can still hear because their mind is pure enough to not get distracted. But especially for the beginners and anyone, it is advised if they can chant loudly. That is good. That is very helpful. Keeping the back straight and chanting loudly. These two are very helpful for beginner sadhakas. Meaning we all devote it. It is very special, very good. And Mahaprabhu himself is exemplifying by his own example. Rupa Goswami has spoken in Chaitanya Astaka in the 5th verse that Mahaprabhu was chanting Mahamantra loudly. The Sahajiya, they say that Mahaprabhu was not chanting loudly. But Rupa Goswami is saying, and he is the one who was Manovistam, who know the heart of Chaitanya Mahaprabhu. So one should beg mercy at the lotus feet of Rupa Goswami. He first established the desire of Mahaprabhu on this planet. He is an authority. And he says Mahaprabhu was chanting loudly. Still the Sahajas, they say, no, Mahaprabhu was not chanting loudly. Nonetheless, they are not in the position of authority as Shri Rupa. So Mahaprabhu is saying, this is the 5th verse from Rupa Goswami, Chaitanya Astaka, we recited, that Mahaprabhu, okay, this is a different version. I'm saying, so this, here it is mentioned, very beautiful. Sri Chaitanya Mahaprabhu will bless that person who chants Hare Krishna Mahamantra loudly, and he will give his mercy to that person who has Hare Krishna Mahamantra dancing on his tongue. His left hand is placed on his hip and his right hand is stretched. Sri Chaitanya Mahaprabhu has features that are transcendental. Mahaprabhu will bless that person who chants
So Mahaprabhu will bless that person who chants Hare Krishna Mahamantra loudly, and he will give mercy to that person who has Hare Krishna mantra on his tongue. So if you want mercy of Chaitanya Mahaprabhu, then we can chant loudly. And then again we quoting, this is from Chaitanya Charitamrita only, about it. हरे कृष्णेति मंत्र प्रतीक ग्रहणं षोडश नाम्नात्मनः द्वात्रिंशत् अक्षरेण मंत्रेण उच्चे उच्चारितेन स्फुरितकृत नित्य रसना दीवयत्यतः. When the 16 names and 32 syllables of Hare Krishna Mahamantra are loudly vibrated, Krishna himself dances on one's tongue. So in our case, chanting loudly will help us to hear enough. And one should not chant concocted mantras. Buddha Bhushan, who is a Gaudiya Vaishnava Acharya, has written, Hare Krishna, this is our mantra which we chanted, Sodas Namnatmana. This is Sodas Namnatmana mantra. So it has 16 names. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. 4, 16. And each name consists 2 syllables. This equals 32 syllables. 16 names and 32 syllables. This is Mahamantra. And everyone should chant this Mahamantra. So Baldev Vidyabhushan has cautioned one should not chant concocted mantra. In Kali Tantra Upanishad, it is said, Hare Krishna Mahamantra is a Tarak Brahma mantra for the age of Kali Yuga. Yes, such holy name of the Lord, sometimes people they question, because we also hear in the scriptures, that any holy name of the Lord is pure enough. Any holy name of the Lord can be chanted. So that is true. But still, some holy name which is authorized in the scriptures, which is recommended in the scriptures, naturally that holy name will have much more potential. So this particular holy name is mentioned in Kali Tantra Upanishad, that this is a Tarak Brahma mantra for this age of Kali Yuga. If you want mukti in this age, if you want liberation in this age, then what is the best process? This holy name, this mantra of Allah. This is known as Tarak Brahma mantra. He is quoting Sodaki Namani. This mantra. It is Tarak Brahma mantra. So it is meant for the deliverance of all the living entities in Kali Yuga. It is prescribed by all the Mahajan Acharyas. No, ये बता रहे हैं कि it is not prescribed by the Mahajans and Acharyas to concoct other slogans, जैसा कि हम जगन्नाथपुरी में देखते हैं, निताय गौर राधे श्याम, हरे कृष्णा हरे राम, और श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्णा हरे राम, श्री राधा गोविंद. ये भी भगवान के नाम है, लेकिन ये प्रिस्क्राइब्ड नहीं. एक्चुअली एक चरणदास बाबा जी महाराज थे जगन्नाथपुरी में, तो उन्होंने ये वाला कोट किया था, निताय गौर राधे श्याम, हरे कृष्णा हरे राम. तो जो शिला भक्ति जी ठाकुर थे उस टाइम पे, ही वाज हेवीली अगेंस्ट हिम एंड ही वाज preaching that how you can concoct like this. Nowhere in the scripture this mantra is given, but somehow he was promoting it. तो एक बार उनकी क्लास, उनका पंडाल प्रोग्राम था जिसमें चरणदास बाबा जी महाराज प्रवचन दे रहे थे, तो भक्ति जी ठाकुर उन्हीं के पंडाल प्रोग्राम में आ जाते हैं, उनसे माइक छीन लेते हैं और उनके बारे में बोलने लग जाते हैं, और अपने शिष्यों को लेके आते हैं, जो एक पैम्पलेट लेके आते हैं और बोलते हैं कि ये पैम्पलेट इनके शिष्यों को बांटे, जिसमें ये लिखा था कि आपके बाबा जी जो मंत्र बता रहे हैं ये गलत है. तो इतना हैवीली अपोज किया उन्होंने कि भक्ति ठाकुर को मारने के लिए बाकी ग्रुप ने पैसे दिए थे पुलिस को कि आप कुछ मत बोलना, इसको हम मरवाने वाले. फिर वो पुलिस वाले भक्ति ठाकुर को बताते हैं कि आप अपने बच्चे को पिटा लीजिए,
तो भक्ति ठाकुर भक्ति साहब गुरु बोलते हैं आप बिल्कुल प्रचार मत करो, आप नवदीप में जाओ, वहाँ होली नीम का शेल्टर। तो फिर भक्ति ठाकुर नवदीप चले जाते हैं होली नीम का शेल्टर लेने में। तो ये चरणदास बाबा जी महाराज somehow अगर ही वेरी फेमस, तो इसलिए आप देखेंगे बहुत कॉमन है ये दो मंत्र। जो सिद्ध बकुल है वो उन्हीं के फॉलोअर्स चलाते हैं, हरिदास ठाकुर का जो समाधि है उन्हीं के फॉलोअर्स। तो यही या तो ये गाएंगे, निताय गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम, या श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। तो हमारे भक्त जाते हैं जब उस में सुनते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, तो भक्त सोचते हैं कि वो पंचतत्व मंत्र बोलने वाले, तो बोलते हैं वो हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। ये सिद्ध बकुल में आपने सुना होगा ये वाला, राइट? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद, ऐसा करके गाते हैं। लेकिन ये कंकॉक्टेड है, तो मतलब भक्तियानंद ठाकुर, भक्तिविनोद ठाकुर इत्यादि किसी भी हमारे आचार्य ने इसको पथराई नहीं किया है। तो भले ही भगवान का नाम है, उनको फायदा तो स्वाभाविक रूप से होगा, लेकिन भगवान जो बता रहे हैं वो मंत्र उच्चारण करना चाहिए, भगवान जो बोल रहे हैं वो करना चाहिए। तो जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो तारक मंत्र है, दिस इज नोन एज ब्रह्म मंत्र और कलियुगा। ब्रह्मा मीन्स ओरिजिनल गुरु। The Srutis have declared this mantra to be the best means of deliverance in the age of Kali। तो ये मंत्र जो है ये बेस्ट शॉर्ट वे है डिलीवरेंस के लिए। आपको अगर भगवान के धाम जाना है तो बस इस मंत्र को आप लाउडली उच्चारण करना प्रारंभ कर देंगे। तो ये ब्रह्मा जी जो है, बताया गया है कि ब्रह्मा जी ने फिर उनके पुत्रों को ये मंत्र वगैरह दिया। इस तरीके से डिसाइपल सक्सेशन में वो मंत्र आ रहा है। तो इसलिए देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ कंकॉक्शन, इसलिए कंकॉक्शन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर सीधा और रूप स्वामी महाराज प्रभुपाद जी को कोट कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं सच chants may be a good poetry but they cannot help us to go forward in those insights। देखिए भक्ति में हम क्या कर रहे हैं वो भले डिवोशनल है, लेकिन अगर वो गुरु परंपरा से ब्लेसेड नहीं है तो वो हमको फायदा नहीं करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक सिद्धांत है। जो हम मंत्र लेते हैं, जो भी हम भक्ति की क्रियाएं करते हैं, जो गुरु परंपरा हमको ब्लेस करती हैं और वो क्रियाएं हम उनके अधीन रहकर करते हैं, तभी हमको आध्यात्मिक फायदा मिलता है, वरना आध्यात्मिक फायदा नहीं मिलता है। कई बार लोग बोलते हैं मेरे को तो पता चल गया, ये मंत्र उच्चारण कर लूंगा, ये शास्त्र पढ़ लूंगा, ये सेवा कर लूंगा। आप सब कुछ कर लीजिए और वापस करने के लिए आ जाएंगे आप यहाँ पर, लेकिन आपको आध्यात्मिक उन्नति चाहिए तो गुरु परंपरा ने जो ब्लेस किया है और गुरु परंपरा के अधीन रहकर आपने उनको फॉलो किया। एक बार एक शिष्य थे वृंदावन में, प्रभुपाद जी को खत लिखे, प्रभुपाद जी यहाँ पर किसी को भागवतम क्लास देना नहीं आता, मेरा मन नहीं करता भागवतम क्लास सुनने। तो प्रभुपाद जी ने बोला ऐसा अगर आपको लगता है तो आप दे दो, लेकिन भागवतम डेली होना चाहिए और डेली भागवतम सबको सुनना है। तो जो आचार्यगण बता रहे हैं उसमें कुछ कमियां हैं, सपोज जैसे प्रभुपाद जी ने बोला नित्यम भागवत के लिए, किसी ऐसे स्थान पर हम रहते हैं जहाँ पर भागवतम क्लास अच्छी नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इंस्ट्रक्शन को कॉम्प्रोमाइज कर सकते। अब हमको देखना है कि ठीक है उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं जिससे कि उसको इम्प्रूव करें सिचुएशन। बट इंस्ट्रक्शन जो ब्लेसिंग गुरु महाराज ने दिया है, प्रभुपाद जी जैसे आचार्य ने दिया है, वो हमको फॉलो करना है। तो डिसाइपल में ये एक सेंस ऑफ फॉलोइंग बहुत इंपॉर्टेंट है गुरु परंपरा स्पिरिचुअल लाइफ में। अगर ये नहीं है then we can concoct anything or we can try to do anything, but then we will not get spiritual benefit। So see, same thing is saying their guru comes in the bona fide disciplic succession, their guru has not said this, so why do they do it? शास्त्र गुरु लंघना। हम क्या बोल रहे हैं, जो चरणदास बाबा जी महाराज के गुरु हैं उन्होंने तो बोला नहीं है तो इन्होंने कहाँ से अपना कंकाउट कर लिया? तो ये क्या है, शास्त्र गुरु लंघना। हाँ ऐसा, तो ये सही नहीं। दे आर रास्कल्स दुर्जनस,
Hence, one should not associate with such person and should not chant these concocted slogan. क्योंकि भक्ति में हो सकता है कोई बहुत बड़ा स्कॉलर हो, बहुत करिज्मेटिक हो, बहुत सक्सेसफुल हो, बट अगर वो गुरु परंपरा के समझ से नहीं है, गुरु परंपरा के अनुसार हमको गाइड नहीं कर रहा है, गुरु परंपरा के अनुसार हमको नहीं बता रहा है, then we have to say him because being submissive and loyal to Guru Parampara is very important to receive mercy. We can't perfect our life by chanting Hare Krishna Mahamantra also. We can perfect our life when Krishna gives mercy. And he will give mercy when he sees that how we are humbly trying to approach our Guru Parampara and we are trying to follow what they are saying. When Vallabhacharya came to Chaitanya Mahaprabhu and said, Mahaprabhu, I have written commentary on Bhagavatam and my commentary on Bhagavatam is better than Sridhar Swami. तो उसको लगा कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया है, अब तो मतलब कि बहुत महाप्रभु भी इम्प्रेस हो जाएंगे, क्या बात है यार. जैसे महाप्रभु सुने, महाप्रभु said anyone who does not consider his Swami is a prostitute. तो ओरिजिनल कमेंटेटर कौन है? श्रीधर स्वामी. और आप उनको ही कंसीडर नहीं कर रहे तो आप प्रोस्टिट्यूट हो. यानी कि हर डिसाइपल को अपने गुरु परंपरा को अपना स्वामी मानना चाहिए और उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं कुछ नया कर सकता हूँ या करने का प्रयास करना चाहिए. We have to consider and value them that by their mercy and by following what they want, I can have mercy of the Lord. So we see that Mahaprabhu did not become impressed by, although it may be amazing presentation of Srimad Bhagavatam. तारक ब्रह्म मंत्र. तारक ब्रह्म नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. भगवान भी बहुत, Lord also is very special and merciful. We know in Kali-yuga we can't chant any complicated name. So most easy and simple mantra Lord is, right? Anyone can easily remember, anyone can easily chant, and we can make your life perfect. So this is a Tarak Brahma mantra which is mentioned. In other yugas there are different Tarak Brahma mantra. So this Tarak Brahma mantra is for Kali-yuga. Now for Satyuga the Tarak Brahma mantra was Narayana para Veda, Narayana para Prakshara, Narayana para Bhakti, Narayana para Gati. इसको 16 माला करना पड़ेगा. नारायण पर वेद, नारायण पर अक्षर, नारायण पर मुक्ति, नारायण पर गति, नारायण पर वेद, नारायण पर अक्षर, नारायण पर मुक्ति, नारायण पर गति, नारायण 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 नारायण. यार ये भी हो सकता है, इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. चैंटिंग कीजिए नारायण पर वेद, नारायण पर अक्षर, नारायण पर मुक्ति, नारायण पर गति, नारायण पर वेद. लेकिन सत्युग में ऐसे चैंट नहीं करते थे. चैंटिंग ऐसे करते नारायण परा वेदा, नारायण पराक्षर, ऐसे करते थे. वो तो मेडिटेशन प्रोसेस था ना, तो ऐसे ही करते थे. नारायण परा मुक्ति. एक ओके, दोनों हाथ ऊपर करके बिना ब्लैंकेट पहने या बिना जैकेट पहने और बिना खाए पिए नारायण परागति ऐसा करके तब भगवान नारायण आते थे और उनको खिलाने के लिए. तो त्रेता युग में तारक मंत्र था राम नारायण मुकुंद मधुसूदन कृष्ण केशव कंसारे हरे वैकुंठ वामन. ये थोड़ा मुश्किल है. राम नारायण अनंत मुकुंद मधुसूदन कृष्ण केशव कंसारे हरे वैकुंठ वामन. ये त्रेता युग में तारक ब्रह्म मंत्र था. द्वापर युग में हरे मुरारे मधु केतुगारे गोपाल गोविंद मुकुंद सोरे यज्ञ नारायण कृष्ण विष्णु नेराश्रयम मम जगदीश रक्षा. ये सबसे डिफिकल्ट है.
उसके बाद सबसे आसान है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई अगर पूछता है कि थोड़ा डिफिकल्ट मंत्र चाहिए तो ये दे सकते हैं। दापरिक का त्याग कर लीजिए। तो दे ऑल आर प्रिस्क्राइब्ड इन द शास्त्र। तो आप देखिए शास्त्र भी कितने रिलेवेंट है। शास्त्र जो है सत्युग के हिसाब से सत्युग के लिए मंत्रा दे रहे हैं, त्रेतयुग के हिसाब से त्रेतयुग के लिए दे रहे हैं, द्वापरिक के हिसाब से द्वापरिक के लिए दे रहे हैं, और हम जैसे कलयुग वालों के हिसाब से कलयुग के लिए मंत्रा दे रहे हैं। तो कितना कई बार लोग सोचते हैं ना शास्त्र कैसे रेलेवेंट है, दे आर रेलेवेंट एज पर टाइम के सर्कमस्टेंस। तो ये तारक ब्रह्म मंत्र है कलयुग का। और ये अलग अलग युग के तारक ब्रह्म मंत्र जो है वो बता दिए हैं, द्वापर युग का, त्रेता युग का और सतयुग का, और कलयुग का तारक ब्रह्म मंत्र है। अब इस मंत्र में और बाकी तारक ब्रह्म मंत्र में क्या विशेषता है वो बताया। दिस मंत्र इज बेस्ट अमंग ऑल अदर तारक ब्रह्म मंत्र बिकॉज दिस मंत्र इज अ माधुर्य तारक ब्रह्म नाम। ये फर्क है, बाकी जो है उनमें ऐश्वर्य है, लेकिन ये जो तारक ब्रह्म मंत्र है ये है माधुर्य तारक ब्रह्म नाम। It has great potential and it is so powerful. It is Madhurya. There is no Aishwarya at all. In all other names, you will find Aishwarya. But in Kali Yuga, this Tarak Brahma Naam is Madhurya Naam. And that is why Mahaprabhu chant this. In the names of other yugas, you will find this Vikrama and Mukti. But here in Tarak Brahma Naam for Kali Yuga, you will find only Prem, only Prem. That is said, Bhakti Pade Mukti Dati. Mukti is the maid servant standing at the doorstep of Prem Bhakti. Those who are really intelligent, those who only desire to accept the essence, will chant this mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. And beauty is that Lord has removed all the conditions. One can chant at any place, at any time, and there is no restriction at all. अब कहीं पर भी किसी स्थिति में आप इस भगवान के नाम का आश्रय ले सकते हैं। ये भगवान के नाम की विशेषता है। नाम नाम कार्य खुद, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रापित निज स्मरति नकार। एकादशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवं दृश्यं ज्ञातविनां। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। भगवान ने अपने नामों में सारी शक्ति जो है दे दी है। और भगवान के बहुत सारे नेम हैं, कृष्ण और गोविंदा। And there are no hard and fast rule for chanting these names. Lord, out of kindness, has enabled us to approach Him by His holy name. But I am so unfortunate that I have no attraction for them. I sleep while chanting them. Mahaprabhu has said there is no restriction at all. In any place, at any time, one can chant. It never waits for Diksha also. Hari Bo. So before Diksha also you can chant and take benefit. One can achieve liberation by securing Namabhav. This mantra is so powerful. आप शुद्ध नाम पर भी नहीं पहुंचे हो, नामाभास भी किया आपने, तो आपको मुक्ति मिल जाए। इतना आसान हो गया मुक्ति प्राप्त करना तारक ब्रह्म नाम के कारण। आप लोगों ने वो सुना होगा, ये आलोक गुरु ने एक मैसेज भेजा ना, एक पढ़ा आप लोगों ने वो माता जी के बारे में, जीवन यस प्रभु जी। आप लोगों ने नहीं सुना? ये बात तो ये कैसे पढ़ ली? ओके, तो इसमें क्या है, दिस इज बाय अमेय आत्मा प्रभु 2022 ऑफरिंग।
तो उसमें बता रहे हैं, इट हैज बीन 46 लॉन्ग ईयर सिंस आई लास्ट saw you in person in 1976, यानी प्रभुपाद को बोल रहे हैं. You never made it back to LA in 1977. I was not able to come to India to see you again. For 41 of those years, I had a friend, partner, my wife, who also left this world this year, and in an auspicious day. She had kidney disease, then cognitive heart failure due to high blood pressure. In the last month, she knew she would be leaving soon. In her last days, she hadn't slept for 36 hours. Then finally, she fell asleep. After 18 hours, I tapped her on her shoulder, and she immediately woke up, saying, Radha, Radha. I had never heard her call out to Radha like that before. She again said, Radha, Radha. Then she told me to start chanting. I put a recording of you, Srila Prabhupada, chanting Hare Krishna Mahamantra. And I and our son, who was home, both started chanting the Mahamantra. She asked for her Jagannath deity, and I placed him next to her. I put fresh tilak on her and placed a tulsi leaf in her mouth. And she left this world very peacefully, no struggle. She just stopped breathing, but Krishna was there in the form of his holy name, being chanted not just by her husband and son, but by you, Srila Prabhupada, the pure beauty of Radha and Krishna. प्रभुपाद जी का ये दोनों हमेशा साथ में रखना चाहिए. जब भी टाइम आ जाएगा तो हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे, सुन सकते हैं. What was the most auspicious in my view was that when I woke her up, she called out, Radha, Radha. I knew right then that she was already on her way back home, and my waking her up brought her back here, just long enough so that she could depart in a most auspicious way. Then a week after she left, she appeared in my dream, where she gave me a message and asked that I tell others. The message she wanted me to tell is this. She was a simple devotee. She never held any position. She was not in charge of any project. Yet she wanted not just me, but others to know that she is being taken back home, back to Godhead. What she wanted me to tell everyone was that the program that you taught us, the Prabhupada works, all we have to do is follow the simple program that you have so kindly given us. Just chant 16 rounds daily, read your books and render service to Krishna in the form of his deity, to render service to you, Srila Prabhupada, Krishna's pure devotee. We don't have to become a big important devotee. We don't have to be in charge of this or that. We all have followers for the famous. If that becomes our service to you and Krishna, then fine, we carry it out at the same. We carry it out the same as we clean the temple room floor or wash Krishna's pots. We just do whatever service you and Krishna gives in a humble and devotional mood. And that is the most important part, the devotional mood. Even if we are not able to render physical service, our mood must always be of devotion to Krishna. This was the message he asked me to tell others. She went back home back to Godhead. So it is very easy in Kali Yuga to achieve liberation and to go back home back to Godhead. Provided one sincerely takes to the chanting of holy names for Lord and does not offend any devotee, then he can go. And liberation too is very easy because somebody chanting surely can easily come to Nama house and then can have liberation. But obviously, if somebody has a lot of material desire, although he is qualified for liberation, but because of material desire, then he will be taken to further. And then he will have a lot of opulence. And by that time he comes back, the golden era of Chaitanya Mahaprabhu will go. And then he will become gross materialist. And then again he will take birth in Satyavana, sitting under a tree in the river. And then chanting this Satyavana, Brahma Tarak, Narayana Paraveda. Right. So we are very fortunate. Madhurya
Tarak Brahma Nam is given in this age. If you have this time, it is Madhurya Para, but without accepting a bona fide Guru, a Gaur Priyajan, a pure devotee of Mahaprabhu, one cannot acquire it. One may reach the Namavad stage, Ajamela achieved that stage. Then Ajamela associated with Sadhu, accepted Sadhu Guru. Then he achieved it. तो इसमें क्या बताया गया है, जब आप होली नेम चैंटिंग करते हैं तो भले आप अगर गुरु को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो नामाभास तक आ सकते हैं। होली नेम में इतना पोटेंशियल है, तब भी आपको मुक्ति तो दे ही देगा, ब्रह्म ज्योति तक तो पहुंच ही जाओ। लेकिन अगर हम माधुर्य तारक ब्रह्म नाम लेना चाहते हैं और भगवान के धाम जाना चाहते हैं तो उसके लिए बोनाफाइड गुरु का आश्रय लेना जरूरी, ये बताएंगे। तब हम जो है माधुर्य नाम या शुद्ध नाम जप कर सकते हैं, गुरु की कृपा से पहुंच सकते हैं। ये माधुर्य तारक ब्रह्म नाम है। So now people will ask, what is माधुर्य तारक ब्रह्म नाम? ओके, तारक ब्रह्म नाम जो बाकी एजेस में है वो ऑलरेडी बता दिया है, तो कुछ पूछता है तो आप बता सकते हो। और जो कलयुग में स्पेशल है, क्योंकि कलयुग में वो है माधुर्य तारक ब्रह्म नाम, बाकी जो है वो है ऐश्वर्य ब्रह्म नाम। जो सत्युग है उसमें तो कंप्लीटली ऐश्वर्य है, नारायण परा। तो देयर इज ओनली शांत एंड दास्य मेलो इन सत्युग, क्योंकि सत्युग में तो दोस्ती वोस्ती करते नहीं, अकेले रहते थे बेचारे, तो उनका भाव वैसे ही था, शांत सही है, बस ज्यादा से ज्यादा थोड़ा। त्रेता युग में शांत दास्य एंड ग्लिम्स ऑफ साक्ष्य। इसलिए अवतारों में आप देखो, जितने भी अवतार सत्युग में हुए वो सब ऐसे वाले। त्रेता युग में राम जी के पास थोड़ा है, लेकिन उसमें क्या देखेंगे, साक्ष्य कम है, दास्य थोड़ा ज्यादा है। सत्युग में शांत ज्यादा है और त्रेता युग में दास्य ज्यादा है। द्वापर युग में आप देखोगे तो शांत, दास्य, साक्ष्य और वात्सल्य और माधुर्य भी है। So this is स्पेशल कलयुगा। ये स्पेशल कलयुगा क्यों है? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु आए हैं, इसलिए ये जो तारक ब्रह्म नाम है ये माधुर्य है। It gives prema and all the rasas are included in this tarak brahma naam. Madhurya means all other rasas are included. This is the best of all tarak brahma mantra. The people of Kali Yuga are very fortunate. They can have this thing. आप लोग कितने सौभाग्यशाली हो, एकदम प्रेम मिलेगा आपको। In other yugas they cannot attain this prema. Therefore the people of other yugas want to take birth in Kali Yuga. इसलिए पॉपुलेशन बढ़ रहा है। बेंगलोर में लोग बोलते हैं कितने लोग आ गए, कितने लोग आ गए, बोलो भैया कल युग आ रहे हैं, सत्य के भी आ रहे हैं, तेरे के भी आ रहे हैं, दादा के भी आ रहे हैं। तो खुश रहो, अपने घरों में जगह ज्यादा बनाओ, एक एक सेंटर पे ज्यादा लोग रह सकते हैं एडजस्ट करके, क्योंकि बहुत लोग आना चाह रहे हैं शरीर में। तारक ब्रह्म नाम, करेक्ट ना? नाउ यू अंडरस्टूड व्हाई पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, सो मेनी पीपल वांट टू कम इन कली नाम। फिर देखिए क्या बता रहे हैं, इफ यू कैन नॉट अटेन प्रेमा then your life is spoiled because the opportunity is given. अगर अब प्रेम नहीं मिलता है आपको तो सत्यानाश आपका। ये अपॉर्चुनिटी मिला फिर भी कुछ कर नहीं पाए, जीवन स्पॉइल हो गया। Though the Kali Yuga is worst of all the yugas, it has this special quality. तो एक्चुअली ये भी हमको थोड़ा प्रैक्टिकल रहना चाहिए, जानना चाहिए। अगर आप कलियुगा को किसी और दृष्टिकोण से देखोगे तो शास्त्र भी बताता है कलियुगा बेकार है। अगर आप सोचोगे कलियुगा में रिलेशनशिप अच्छे होंगे, नहीं होंगे। आप सोचोगे कलियुगा में हेल्थ अच्छा रहेगा, कितना भी आयुर्वेदा खाओ, च्यवनप्राश खाओ, नहीं ठीक रहेगा। आप सोचेंगे कलियुगा में जो है सिस्टम्स अच्छे बनेंगे, कैसे भी सिस्टम बनाओ, लोग ही तो हैं सिस्टम बनने वाले। अब देखो कलियुगा में जैसे नोएडा में वो इंजीनियर था, उसकी मृत्यु हुई,
अब कितना भी उसको यूट्यूब में डालो, कुछ समय के बाद में वापस दूसरा जाएगा। क्योंकि कलीगा है। लोग जो हैं अपने स्वार्थ में इतने अंधे हैं और उनके अंदर इतने अवगुण हैं दैट नेचुरली ये सब होगा ही कलीगा में। आप देखो कलीगा में कितना अडल्ट्रेशन है। बिल्कुल घी नहीं है और घी बिक रहा है, मतलब उसके अंदर घी है ही नहीं। पहले तो दूध में पानी मिलाते थे, अब तो मतलब दूध है ही नहीं। सर से कुक करके। आप सोचो मतलब क्या खा रहा है आदमी। और इसलिए आप देखो अभी मल्टी ऑर्गन फेलियर कितना ज्यादा बढ़ गया है। अधिकांश लोग मरते हैं तो ऐसे होता है, पहले किडनी लिवर मल्टी ऑर्गन। मल्टी ऑर्गन होते ही फिर तो डॉक्टर हाथ खड़ा कर देता है, अभी किस किस ऑर्गन को टच करेंगे। यू हैव टू नो कलियुग में आप कुछ भी देख रहे हो तो खराब है ही, आप कितना भी कीजिए। और देखो अमेरिका में वो ट्रम्प जैसा पागल आदमी आ गया, सब परेशान है। कब सुबह खड़ा होता है क्या बोलता है पता नहीं किसी का। नहीं, और बुरा हाल है। भारत में तो फिर भी अच्छा है। बाकी आप देशों में देखो मतलब यहाँ पर कम्युनिस्ट कंट्री है, आपको कौन कब मार देगा पता नहीं। सरकार का पूरा कंट्रोल चलता है। वहां पर वो बता रहे थे ना कि एक बार एक राजा का पर्स गुम हो गया था, तो उसने इतने लोगों को मरवा दिया था चाइना में। इसलिए वहां पर कोई भी पर्स को टच नहीं करता है। हिंदू तुम महाराज बता रहे थे कि उनका दोस्त था, उसका एक बटुआ गिर गया था, तो वो बोला, अरे महाराज मेरे को वापस जाना पड़ेगा बटुआ लेने के लिए। महाराज बोले आप थोड़ी ना मिलेगा। तो उनके दोस्त बोलते हैं कि महाराज चाइना में आपका बटुआ कहीं पर भी हो, कोई उसको हाथ नहीं लगाए। ऐसा क्यों? तब उसने एक पूरा स्टोरी बताया। आप देखो मतलब कितना वो है, इतने लोगों को कैसे मारा जाता है। जिस पे पावर है वही कलियुग में सब कुछ है। और भारत में भी होता है कुछ हद तक, लेकिन फिर भी कम है। लेकिन जो कम्युनिस्ट कंट्री हैं, जो डिक्टेटर वाली कंट्री हैं, आप अरब नेशंस में देखो, जितनी भी अरब नेशंस हैं उसमें क्या है, जो राजा का लड़का है वही राजा बनेगा। मानो कि उसके चार लड़के हो गए, कभी जो सबसे बड़ा उसको राजा बनना है, नीचे की टीम को पता है कि भैया यही बनेगा, तो वो प्लान करते हैं इसको उड़ाने के लिए। उन तीनों में से अगर कोई शक्तिशाली हुआ तो इसको उड़ा देगा। और वहां खबर ये आती है बस ये मर गए, कैसे मरे वो खबर नहीं आती है। ये जो यूएई का राजा है, पहले मतलब कि जो इसके पिताजी थे, उसके जो भाई थे वो राजा थे। यानी कि इसके पिताजी और इसके चाचा वो एक ही पापा के बेटे थे। तो उन्होंने इनको राजा बनाया क्योंकि चाचा नहीं था वो, क्योंकि वो बड़े थे। तो अभी उनके ही वंशज आएगा नेचुरली ना, इनका वंशज तो आएगा। तो इसके ये जो बिन लदक वदक पता नहीं क्या नाम है उसका, उसके अ, पापा ने उनके पूरे परिवार को पार्टी के लिए बुलाया। तो उनका पूरा परिवार पार्टी के लिए आया, और उस पूरे परिवार को इन्होंने पार्टी में मार दिया, इनके पापा ने। फिर ये बन गए ऐसा। और प्रतीक को बता रहे थे इतना वो रहता है इनका, बहुत बड़ा जमीन होगा इनका, उसमें इनका पैलेस होगा, स्विमिंग पूल होगा, और बहुत सारी रानियों से विवाह करते हैं ये लोग, बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं। और जो भी इनके कंट्री में होता है जैसे फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर वगैरह, सब इनके परिवार वाले ही बनते हैं। कोई ये लड़का बड़े लड़के को फाइनेंस मिनिस्टर, दूसरे दूसरे नंबर वाले को ये, तीसरे नंबर वाले को ये। और इनका क्या है, कोर्ट सिस्टम है, क्योंकि यही कोर्ट है। कहीं पर भी किसी ने कुछ भी इनसे पंगा ले लिया ऐसा। अब देखिए कलियुग में ऐसा ही वातावरण है, हर जगह हर जगह। तो अगर आप कलियुग में कुछ अच्छा सोचने का प्रयास कर रहे हो, वो नहीं होगा। लेकिन एक चीज अच्छा है कलियुग में, वो क्या है, आप हेल्पलेसली भगवान के नाम का आश्रय ले सकते हैं। कोई कुछ नहीं बोलेगा, आज द्वार में जाओ, गंगा के तट पर बैठ जाओ, हरे कृष्णा बोलो बस, गंगा जी के किनारे कोई कुछ नहीं बोलेगा। और आप अपना जीवन का सर्वश्रेष्ठ परफेक्शन अचीव कर सकते हो। और क्या चाहिए आपको? इसलिए कलियुग में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए, पॉसिबल नहीं है। आप अच्छे से अच्छा इंप्लॉई हो, अच्छे से अच्छा काम करते हो, निकाल देंगे आपको। और पता चला जिसमें आप बहुत अच्छे हो वही आउटडेटेड हो गई टेक्नोलॉजी, अब क्या करोगे? और हो सकता है कि आप उतने यूज टू नहीं हो नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए, कुछ नहीं कर सकते। कई लोगों का ऐसा करियर खत्म हो जाता है। करेक्ट। रिलेशनशिप में भी कुछ नहीं कर सकते, आपने बहुत अच्छा विवाह किया, सारा
कुंडली मैच किया, क्वेश्चन आंसर किए, अच्छी तरीके से डिस्कशन हुआ, अच्छा अंडरस्टैंडिंग हुआ, विवाह हो गया, 2 साल के लिए सब ठीक चला। 2 साल के बाद में उनका किसी और से कनेक्शन हो गया, बस खत्म। फिर आप जो है हमेशा एंजाइटी में रहोगे, कहाँ गई सच बता, कहाँ गई सच बता। वो थोड़ी ना सच बताएगी। तो कब कहाँ कैसे हो जाए कुछ नहीं कह सकते। या कोई है बहुत अच्छा हेल्दी है, और तुरंत आप देखिए एकदम हो जाता है। आजकल तो कितना कॉमन हो गया है। अबे दिपेश गुरु के रियल ब्रदर हार्ट अटैक राइट, अपने शिवम गुरु के कजन ब्रदर हार्ट अटैक राइट, कितना कॉमन हो गया है। तुरंत बस खबर आती है। इनके जो अनिल अग्रवाल हैं, ये वेदांत ग्रुप, एक्चुअली ही वाज द डिसाइपल ऑफ नित्यानंद महाराज। हाँ, ही वाज अ डिवोटी बिफोर एंड ही वाज अ ब्रह्मचारी। उसके बाद चेंज किए, फिर बिजनेस चालू किया, 35,000 करोड़ का एम्पायर है। और उनके बेटे को हार्ट अटैक आ गया, ऑब्वियसली बिकॉज डिवोटी रूट्स थे ना। So again he came to temple, now again he is taking up spiritual life, and he promised 75% of his profit or money he will give in charity। 35,000 करोड़ का 75%। इतना भगवान की सेवा में आएगा। बट पॉइंट क्या है, वो वेदांत ग्रुप हॉस्पिटल्स का ग्रुप है ना। कंपनी लेकिन हॉस्पिटल भी है ना मेन। हाँ, एलिमेंट की फैक्ट्री। ओके, जो भी है, मतलब हॉस्पिटल है कि हॉस्पिटल भी है ना। तो जो भी है, मतलब इतना बड़ा होने के बाद में भी उनका ही बेटा हार्ट अटैक से मर गया, वो बचा नहीं पाया। कई लोग सोचते हैं एम्बुलेंस में बिठा के जल्दी ले जाएंगे बच जाएगा। वो भी जब भगवान चाहते हैं तब बचता है, वरना नहीं बचता है। वरना एम्बुलेंस आएगी, बीच में ट्रैफिक आ जाएगा, जब बीच में एम्बुलेंस का टायर खराब हो जाएगा। तो जब आप हॉस्पिटल में पहुंचोगे, तो डॉक्टर बोलेगा कि थोड़ा सा लेट हो, 5 मिनट आप लेट हो गए। फिर सरकार बोलेगी कि हम लोग ना अभी हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस लॉन्च कर रहे हैं, जिससे कि कोई कहीं पर भी कुछ हो तो हेलीकॉप्टर को पिकअप करके जाए। उसमें भी आप देखना फॉग आ जाएगा, हेलीकॉप्टर वाले बोलेंगे हमको दिखाई नहीं दिया कहाँ लैंड करना है। हम हॉस्पिटल की जगह तमाम फैक्ट्री के ऊपर लैंड कर रहे हैं। लेकिन कलिगा में आप एक्सपेक्ट करोगे, बहुत लोग एक्सपेक्ट करते हैं बहुत अच्छे सिस्टम होना चाहिए, बहुत ये होना चाहिए। मेरा ब्रदर जब कनाडा गया, तो भैया कनाडा में देखो कितना अच्छा रहता है, फ्री में एजुकेशन है, फ्री में मेडिसिन है, कितना साफ है, सुथरा है, ये है वो है। तो मैं बोला बहुत अच्छा है। तो मैं, मेरी मम्मी थोड़ा बीमार थी, तो मैं अपनी मम्मी को बोला मम्मी कनाडा चले जाओ, भाई इलाज करा देगा, थोड़ा सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मेरे पापा ने फोन किया उसको, बोला तो हम आ जाए, हमारा इलाज करा देना। बोले पापा बहुत बेकार सिस्टम है यहाँ पर। बोले क्या है? तो वहां पर क्या है, प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं रख सकते हो आप कनाडा में। ना प्राइवेट हॉस्पिटल, ना प्राइवेट स्कूल, सब गवर्नमेंट चलाता है, स्कूल भी और हॉस्पिटल भी। और दोनों में गवर्नमेंट मतलब नॉर्मल मनी लेता है, बहुत ज्यादा चार्ज नहीं करता है। लेकिन जैसे हॉस्पिटल है, तो उसमें आपको नंबर लगाना पड़ेगा, और आपका वो नंबर तब आएगा तभी आपको देखेंगे, चाहे आप कितने भी अमीर हो, वहां पर ये भी नहीं है। और अगर इमरजेंसी केस है, मतलब कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, तो आपको इमरजेंसी में लेके जाएंगे, वरना सबको नंबर लगाना पड़ेगा। इसलिए कनाडा में जो अमीर लोग हैं वो अमेरिका में आके इलाज कराते हैं, क्योंकि अमेरिका में प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, तुरंत जो है उनका वो हो जाता है। कनाडा में कोई भेदभाव नहीं, तो वहां पर क्या सबको नंबर लगा और सबका वेटिंग आता रहता है। कहीं पर भी आप जाइए, अच्छे सिस्टम कहीं नहीं है। ये एक मन का मिथ है। अब देखो ये सारे देशों में भी, अमेरिका में एक परिवार ने अपनी पत्नी को मारा, सब परिवार वालों को मार दिया, क्योंकि अमेरिका में सबको गन अलाउड है रखना। अच्छी अच्छी गन अलाउड है, AK-47 भी आप खरीद के घर पर रख सकते हैं। अब गन है तो हाथ में कुछ भी होगा तो क्या करेगा वो? चलाएगा। ऐसे ही होता है अमेरिका में, रातों रात लोग मार देते हैं। भारत में कम से कम फिर भी बहुत अच्छे सिस्टम है भारत में। कम से कम मतलब थोड़े लॉजिकली तो देखोगे तो भारत में ही लॉजिकल सिस्टम है ऐसा।
तो अगर आप कलियुगा में सोच रहे हो कि कुछ एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, सिस्टम अच्छा होगा, हेल्थ अच्छा होगा, एयर पोल्यूशन नहीं होगा, वाटर पोल्यूशन नहीं होगा, अच्छी गवर्नमेंट आएगी, नामुमकिन है। एक से एक चीटर पड़े हुए हैं। लेकिन एक ही चीज है कलियुगा में जो बहुत अच्छा है, वो है भगवान का नाम। आप जितना इसका इन्वेस्ट करेंगे, जितना इसका सहारा लेंगे, उतना आप खुश रहेंगे, उतना जिंदगी में आपको चीटिंग नहीं मिलेगा, धोखा नहीं मिलेगा। वरना कलियुगा में हर जगह धोखा है। कई बार एक पिताजी अपने पुत्र पर 20 साल इन्वेस्ट करता है और पुत्र अमेरिका जाके गायब हो जाता है, आता ही नहीं। पिताजी क्या होता रहता है। भारत में भी कितने ऐसे परिवार हैं, बूढ़ा बूढ़ा पिता, बूढ़ा माँ, जो है अकेले रह रहे हैं भारत में किसी फ्लैट में, और कोई नहीं है नीचे देखने के लिए। कभी एक लोग गए थे यहाँ पर विकास नगर, पता नहीं कौन सा एक जगह है कानपुर में। तो वहां पर एग्जीक्यू का एक प्रोफेसर है। तो पिता है और उसकी पत्नी है, वही दो रहते हैं। तो क्या हुआ, कोई उसका जो लड़का था, तो एक ही लड़का है उनको, जिनको उन्होंने बहुत पढ़ाया, ये किया वो किया, वो बेंगलोर में काम करता है। तो ये लोग लड़के के पास में रहने लग गए थे, बूढ़े हो गए थे, रिटायर्ड हैं, क्या करते हैं। तो एक दिन पता नहीं क्या झगड़ा हुआ, क्या हुआ, लड़के ने इतना मारा पिता को, था 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 था। बेचारा वो बूढ़ा था, क्या करता, वापस यहाँ पर आ गया, आंखों में आंसू उसके। फिर मंदिर आया, मंदिर में देखा, मंदिर में थोड़ा अच्छा लगा। तो फिर जो है, अब उसने प्रण ले लिया ना अपने बेटे को एक भी प्रॉपर्टी नहीं दूंगा, सारी प्रॉपर्टी दादा मर। लेकिन मैं देखा मतलब कैसे लड़के, मतलब बूढ़ा मम्मी बूढ़ा पिताजी उसको मार रहे हैं, मतलब क्या दुनिया आ गई। वो बेचारे स्त्री जो उनकी पत्नी है वो बेड रिडन है, वो कुछ कर नहीं सकती, मतलब काफी डिजीज है उनको। और जो पति हैं वो भी बहुत बूढ़े हैं, थोड़ा बहुत चलते हैं बस ऐसा। लेकिन एक तरीके से बहुत दुख का जीवन जी रहे हैं, कोई है नहीं, ना कोई सहारा है, ना कोई कुछ है। एक बाई को रखा हुआ है, वो आती है, साफ सूफ करती है, और ऐसे उनका जीवन चल रहा है। तो कलियुग में ऐसा हाल है, कलियुग में बहुत बुरा हाल है। इसलिए अगर आपको एक्सपेक्टेशन करना है तो चैंटिंग से कर सकते हैं। ये एक अच्छा कलियुग में क्वालिटी है कि आप जो है भगवान के नाम का आश्रय ले सकते हैं। तो कलियुग इज द वर्स्ट ऑफ ऑल एजेस, बट एक स्पेशल क्वालिटी है कि महाप्रभु यहाँ पर आए, इसलिए स्पेशल कलियुग है। दोज हु आर born in Kaliuga are most fortunate. Mahaprabhu does not appear in all Kaliuga. Therefore, they are most fortunate. Those who are born in Kaliuga, even a dog is fortunate. क्यों? क्योंकि बहुत लोग हरिनाम करते हैं, डॉग को भी सुनने को मिलता है, डॉग बोलता है ये कलियुगा कितना अच्छा है। ये लोग आते हैं हरे कृष्णा बोलते हैं, कुछ सुनना पड़ता है। तो ये कलियुगा में हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। Every day he hears the chanting of Hare Krishna and takes the remnant of all Vaishnavas. ये कुत्ते के बारे में बताइए, ऐसा है कि वो भगवान का नाम सुनने का उसको मौका मिलता है, और वैष्णव जो छोड़ देते हैं वो प्रसाद खाने का मौका मिलता है। तो कई बार डिवोटीज बोलते हैं ये झूठा है हमारा, इसको क्या कर सकते हैं। एक्चुअली जानवरों को दे सकते हैं, अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दे कैनॉट अंडरस्टैंड, हु कैनॉट अंडरस्टैंड अप संप्रदाय, बोला बोला एक्सेट्रा, दे चैंट महामंत्र साइलेंटली। तो दो प्रकार की संप्रदाय है। एक प्रकार की संप्रदाय है जिन्होंने कंकॉक्टी कर लिया है महामंत्र को, और दूसरे प्रकार की संप्रदाय है जो साइलेंटली चैंटिंग करती है मन में से। डीपली चैंटिंग करती है ऐसे। एक्चुअली लोग मानते भी बहुत अच्छा है जो ऐसा मन में चैंटिंग करते हैं, क्योंकि वैदिक टाइम में ऐसा होता था। मुझे याद है एक बार हम ट्रेन में जा रहे थे, मैं था, हमारे साथ एक दो भक्त और थे, चेन्नई पुणे से। हम इस साइड बोगी में बैठे थे, तो ट्रेन में बहुत नींद आता है, हम लोग चैंटिंग कर रहे थे, चैंटिंग करते बार बार नींद आ रहा था। तो हमको करीबन 3 साढ़े 3 घंटा लगा 16 माला करने में। सामने वाली बर्थ पे एक सज्जन थे, बोले स्वामी जी हो गया। तो हमने बोला "हाँ, हो गया"। फिर स्वामी जी अपनों को हम प्रेम करते हैं। इतना गहरा प्रेम। हम लोग आपस में देख रहे हैं कि भैया क्या हो गया।
आप तो इतनी गहरी समाधियों में जा रहे थे, समझ में नहीं आया। तो हमने समझ में आया कि बहुत सो के जब किया है। लोग भी अच्छा मानते हैं इसको, लेकिन पता नहीं कि नींद आ जाता है उसको। वो बता रहे हैं, दे डू नॉट चैंट लाउडली। If they do kirtan, they chant this concocted slogan, Bhajanitaya Gaur Radhe Shyam. They chant this and that. They say Mahaprabhu was not chanting Hare Krishna loudly. But Rupa Goswami clearly says that Mahaprabhu was chanting loudly. So that's why we should hear from Srila Rupa Goswami. बता रहे हैं ये ऐसे कंकॉक्ट करते हैं। मागुर माछेरा झोला, युगति मेरा कोला, बेता हरी हरी बोला। The magur machera means fish. There is one type of fish. It is known as magur machera. You take magur machera jhola. Yugati mera kola. Embrace a young maiden, a sweet 60-year-old maiden, and you embrace her and chant Hari Hari. क्या ये किसने बोला है पता नहीं। They are ideas and they concoct. मागुर माछेरा छोला यानी एक मछली का झोला दे रखा है, और युवती मेरा कोला, यंग लड़की को गले लगा रहा है और फिर बोल रहा है हरी हरी। अच्छा, उसका लिक्विड है। अच्छा, मछली खा के उसका ग्रेवी भी रखा हुआ है। मतलब वो मागुर माछेरा झोल, ये जो मछली का झोल है, वो जैसे हाँ। करी है, हाँ, उसको पान करना, मतलब वो खाना, मतलब मछली खाना। अरे हाँ। एक युवती को मतलब यहाँ पे बैठा के और मतलब हरी क्या बोल रहे हैं तो ये भक्तिनाथ ठाकुर भक्तिनाथ ठाकुर ने बोला। ओके, all right, you will eat magur machera chola and embrace a young maiden and chant Hare Krishna. Why such a restriction? No fish, no meat, no illicit sex, no gambling wine. This is very nice, so we will take it, and so it spreads. It is all concoction. There is no basis. Shastra Langana, Guru Langana. It is not in the Shastra, and the previous Acharya has not declared. इसलिए आप देखो, गुरु साधु शास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट है। मानो अगर कोई इनके शिष्य हैं भी, तो गुरु जी ऐसा बोल रहे हैं, then they should see what our previous आचार्य are saying. गुरु साधु शास्त्र में जो साधु है वो प्रीवियस आचार्य एंड करंट आचार्य, करंट डिवोटीज। तो प्रीवियस आचार्य को देखना चाहिए कि उन्होंने ये मंत्र बोला है क्या, ये मंत्र कहाँ से आया है, कैसे है। गुरु को क्वेश्चन कर सकते हैं, शास्त्र में ये मंत्र है क्या, गुरु को क्वेश्चन कर सकते हैं। ये ट्राइपॉड बहुत जरूरी है गुरु साधु शास्त्र। गुरु कैन नॉट कंकॉक्ट एंड टेल एनीथिंग टू अ डिसाइपल, इट इज नॉट। अब जैसे ये है ओशो का फिलॉसफी, सब लोग से समाधि, डिसाइपल दे शुड क्वेश्चन है उनके, बताइए कहाँ से शास्त्र में लिखा हुआ है। अच्छा, तो वही है, तो गुरु साधु शास्त्र में वो क्या, पहले शास्त्र को रिजेक्ट करेंगे, और परंपरा तो है कि वहीं से चालू हो रही है, और अगले वही बचे। अगले इवन जो कृपालु महाराज जी है, उनको रिपोर्टर ने पूछा था कि आप कौन सी परंपरा में आते हैं, पहले हम नित्य सिद्धांत है, ही स्पोक लाइक दैट, हम नित्य सिद्धांत हमसे चालू करेंगे। और रिपोर्टर क्या बोलेगा, नित्य सिद्धांत तो कुछ बोल नहीं। लेकिन भले नित्य सिद्धांत देखते हैं, भगवान भी आते हैं तो गुरु परंपरा एक्सेप्ट करते हैं। कृष्ण भगवान भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, जितने महाप्रभु ईश्वर भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। You have to know that we can't hear like that. Okay, तो अभी चैप्टर 1 चालू होगा, तो इसको कल सुबह हम डिस्कस करते। कल सुबह का भी टाइम है ना, छुट्टी वक्त का नाम अपराध कल सुबह डिस्कस करते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा। स्वरूपाद की